science class. What about our last 4 chapters? We learn in our last 2 chapters about animals and plants and their adaptations. Okay. Now in this chapter we will learn more about insects. So our 5th chapter is more about insects part 1. So before we start our chapter, let's go through a quick video explaining the chapter more about insects. Insects are very adaptable and are found almost everywhere on the earth: air, land, water, and even beneath the soil and on plants and animals. There are several kinds of insects. They differ in size, shape, color, and other features. Insects do not have a skeleton. They have a hard outer covering called exoskeleton. This provides the necessary support as well as flexibility to their body. Insects have 3 pairs of legs. The body of an insect. An insect's body consists of 3 parts: head, thorax, and abdomen. Head. Insects have a pair of antennae, a pair of eyes, and mouth parts on their head. They use their antennae to detect odor, vibrations, and sounds. They have composite eyes that have thousands of lenses to detect the motion of things around them. The mouth parts of insects can be of different types depending on their food. Many insects like grasshoppers and beetles have chewing type of mouth parts. Some others, like butterflies and moths, have sucking type of mouth parts. Thorax. The chest of an insect is called a thorax. It has 3 segments. It bears 3 pairs of legs, 1 on each segment. These legs are adapted to walk, swim, jump, dig and grab. The thorax also bears wings. Most insects have 2 pairs of wings, but a few like flies have only 1 pair of wings. Some insects like ants and fleas do not have wings at all. Abdomen. The abdomen is the stomach of an insect. It has 11 segments. It contains the heart, respiratory system, excretory system, digestive system, and reproductive system. It may also contain specialized organs like stingers. Social insects. Some insects are social in their behavior and do not live alone. Ants, bees, termites, etc. live together in well-organized colonies to get protection from enemies and share food and work. Life cycle of a butterfly. The series of changes through which an organism passes during its life is called its life cycle. Butterfly has 4 stages in its life cycle. An adult butterfly lays eggs. The eggs hatch and larvae come out. They are known as caterpillars. They eat leaves and grow. The caterpillars spin a cocoon around themselves and are now called pupae. After some time, butterflies come out of the pupae. They grow and become adults. Useful insects. Some insects help us in many ways. We get honey from bees. We also get beeswax from their hive. Variety of products like candles, soaps, skin products, crayon, etc. are made from beeswax. We get silk from silkworms. Some insects help in dispersal of seeds of plants. Many insects eat dead plants and animals and clean the environment. For example, beetle larvae feed on plant remains and dead bodies of animals. Harmful insects. Many insects are harmful to us. They spread diseases and damage crops, store food, books, furniture, and clothes. We can get rid of the harmful insects in different ways. We can use insecticides and pesticides to destroy pests. We can also use some natural methods. For example, we can keep dried neem leaves in clothes or apply neem or kerosene oil on wooden furniture, etc. Insects are very adaptable. After this video, let's start our chapter 5 more about insect. जैसे कि हम वीडियो में देख चुके हैं जो इंसेक्ट है, हमने इसके पहले एनिमल्स के बारे में डीप इंफॉर्मेशन ली है, राइट? सो उनके एडेप्टेशंस क्या है, खुद को कैसे सर्वाइव करते हैं, उसी तरह से इंसेक्ट वो जो छोटे छोटे हैं वो खुद को सर्वाइव भी करते हैं एंड देन कैसे हार्मफुल भी होते हैं वो हमने वीडियो में देखा है. लेट्स स्टार्ट.
जैसे कि हमें पता है एनिमल्स का जो वर्ड हम कह सकते हैं बहुत बड़ा है और उसमें एनिमल शेप में, साइज में, उनके हैबिटेट में, ईटिंग हैबिट्स में जैसे डिफरेंट है, उसी तरह से उनके ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें भी डिफरेंट होते हैं। सो इस चैप्टर में हम उसी तरह से डीपली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले ओनली अबाउट इंसेक्ट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। There is a vast variety of animals in the animal kingdom। जैसे कि एनिमल्स का ये जो बड़ा सा साम्राज्य है, राज्य है, उसमें जो है एनिमल्स की बहुत सारी वैरायटीज है ना। जैसे कि हम हमारे पहले चैप्टर में देख चुके हैं, अगर रीजन चेंज होता है तो एनिमल्स भी चेंज होते हैं, उनके नेम्स चेंज होते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो खुद को किस तरह से सर्वाइव करते हैं, कैसे उन्होंने एडेप्टेशंस को अपने खुद को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या अडेप्ट किया है वो हमने देखा है, राइट। एनिमल्स नॉट ओनली डिफर इन देयर साइज, शेप, हैबिटेट एक्सेट्रा बट आल्सो इन मेनी अदर वेज। जैसे कि हमने देखा है तो एनिमल्स ये जो है साइज, शेप, उनके हैबिटेट, ईटिंग हैबिट, इसमें डिफरेंट तो है ही, बट वो अदर वेज में भी कैसे डिफरेंट है वो भी हमने देखा है। सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सम एनिमल्स हैव बैकबोन। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि उन्हें बैकबोन होता है, कौन से है वो, while others don't। Reptiles, amphibians, mammals, fish, birds, etc. have a backbone। ये जो है reptiles, amphibians, mammals, fish, birds, इन एनिमल्स को क्या होते हैं, बैकबोन्स होते हैं, राइट। सो ये इसमें आते हैं कि जिन एनिमल्स को बैकबोन होते हैं, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, मैमल्स, एग लेइंग बर्ड्स, एनिमल्स जो है देन फिश, बर्ड्स, इन्हें क्या होते हैं, बैकबोन होते हैं। जैसे कि हम देख चुके हैं कि उनकी ईटिंग हैबिटेट्स में जैसे वो डिफरेंट होते हैं, तो उनके बॉडी स्ट्रक्चर में भी वो इस तरह से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, worms, scorpions, spiders and snails are without a backbone। तो जैसे कि ये स्मॉल एनिमल्स है, इंसेक्ट, वर्म्स, स्नेल्स, स्पाइडर्स, ओके, ये क्या है, इन्हें बैकबोन नहीं होता है। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं इंसेक्ट जो है इतने छोटे होते हैं, तो उन्हें क्या नहीं होते हैं, बैकबोन नहीं होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन इंसेक्ट्स and gather more in knowledge about them। जैसे कि हम इस चैप्टर में किसके बारे में डीपली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं, किसके बारे में डीपली नॉलेज लेने वाले हैं, तो ओनली इंसेक्ट के बारे में। ओके, कैसे उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, व्हाटएवर, जैसे उनका देखते आगे क्या हमने डीप नॉलेज कलेक्ट करने वाले हैं। इंसेक्ट्स आर वेरी एडेप्टेबल एंड आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, एयर, लैंड, वाटर एंड इवन beneath the soil and on plants and animals। इंसेक्ट ये ऐसे एनिमल है कि वो कहीं पर भी पाए जाते हैं, राइट। तो जैसे कि हाउस फ्लाई है, मॉस्किटोज है, कहीं पर भी ये पाए जाते हैं। कॉकरोचेस है, ये जो इंसेक्ट है वो कहीं पर भी पाए जाते हैं। प्लांट्स पर रहने वाले हैं एनिमल्स के बॉडी पे भी कुछ इंसेक्ट होते हैं डिफरेंट जो कि वहाँ पर भी वो पाए जाते हैं। जमीन के सॉइल के अंदर भी कुछ एनिमल्स इंसेक्ट होते हैं जो कि हम देख सकते हैं। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट। बहुत सारे, जैसे कि हमने एनिमल्स में देखे हैं, बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स है, अलग अलग एरियाज में रहते हैं, खुद को अडेप्ट किया है कैसे उन्होंने, इसी तरह से इंसेक्ट्स भी कैसे है, इंसेक्ट में भी बहुत सारी वैरायटीज है। दे डिफर इन साइज, शेप, कलर एंड अदर फीचर्स। तो ये जो इंसेक्ट है वो कैसे डिफरेंट है, साइज में, शेप में, देन कलर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव अ स्केलेटन। जैसे कि हमें पता है अगर हम ह्यूमन बीइंग की अगर बॉडी लेते हैं तो उनका क्या होता है, फर्स्टली स्केलेटन होता है, देन उसके ऊपर मसल्स होते हैं एंड देन स्किन होती है। ये हमें पता है, राइट। सो यहाँ पर जो है ये जो इंसेक्ट है इनका इस तरह से स्केलेटन नहीं होता है, बिकॉज ये कैसे होते हैं, स्मॉल एनिमल्स होते हैं जिनको हम इंसेक्ट
आउटर पार्ट है, इन आउटर पार्ट को क्या कहा गया है, एक्सोस्केलेटन, बिकॉज इनका जैसे हम ह्यूमन बींग्स को देन एनिमल्स के बारे में जैसे बोल सकते हैं कि इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल पार्ट्स जो है वो नहीं होते, सो इनका क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, आउटर पार्ट हार्ड होता है, इसी को क्या कहा गया है, एक्सोस्केलेटन। ये क्या करता है, दिस प्रोवाइड्स द नेसेसरी सपोर्ट एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी टू देयर बॉडी। ये जो एक्सोस्केलेटन है ये क्या करता है कि उन्हें सपोर्ट करता है एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी टू देयर बॉडी। इट मीन्स ये जो इंसेक्ट है कहाँ पर ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। किसकी हेल्प से इनको ये जो प्रोसेस होती है, तो एक्सोस्केलेटन। इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। अगर हमने इंसेक्ट को अच्छे से देखा है तो इंसेक्ट को कितने लेग्स होते हैं, 3 लेग्स ऑफ पेयर्स। इट मीन्स दिस साइड 3 लेग्स एंड अदर साइड 3 लेग्स। इस तरह से क्या होते हैं, इंसेक्ट को लेग्स होते हैं, कितने, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। Their body is divided into 3 parts, each of which has a function to carry out। देखिए ये जो इंसेक्ट की बॉडी है कितने पार्ट में डिवाइड हुई है, 3 पार्ट्स में, वो हम आगे देखने वाले हैं। Each of which has a function of carry out। हर एक का फंक्शन किस तरह से अलग अलग है वो हम आगे देखेंगे। सो पहले याद रखना है ये जो है इसके आउटर पार्ट को क्या कहा गया है, एक्सोस्केलेटन। एंड इसके जो लेग्स है कितने होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। एंड ये जो एक्सोस्केलेटन है इनसे क्या होता है, इनके बॉडी को सपोर्ट मिलता है एंड ये फ्लेक्सिबिलिटी इसी से होती है। और इनकी जो पूरी बॉडी है वो कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ओके, सी नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। एन इंसेक्ट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अभी देखिए जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, सो कौन से 3 पार्ट्स है, हेड, थॉरैक्स, इट मीन्स ये जो है थॉरैक्स चेस्ट का पार्ट है, उसमें भी क्या है वो हम आगे देखेंगे। एंड एब्डोमेन, इट मीन स्टमक का पार्ट है, उसमें भी क्या है वो हम डीपली आगे देखने वाले हैं। ओके, हेड, देखिए यहाँ पर ये ग्रास हॉपर, ये जो इंसेक्ट है ग्रास हॉपर, इसकी पूरा ये जो बॉडी के नेम्स है यहाँ पर दिए हैं। फर्स्ट सी देखिए क्या है यहाँ पर, एंटीना, कंपोसाइट आइज, लेग्स, 3 लेग्स ऑफ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, हेड, विंग्स, ये थॉरैक्स, इट मीन्स ये चेस्ट का पार्ट है। देन एब्डोमेन, ये जो है ये स्टमक का पार्ट है। ओके, देखते हैं इनके फंक्शन। हेड में क्या आता है देखते हैं। इंसेक्ट्स हैव अ पेयर ऑफ एंटीना। देखिए ये जो एंटीना है ऑलवेज क्या होता है, जो इंसेक्ट है अगर हर एक जिस इंसेक्ट को एंटीना है तो एक एंटीना नहीं होता है, तो क्या होते हैं ये 2 एंटीनास होते हैं। इसके फंक्शन क्या है, अ पेयर ऑफ आईज एंड माउथ पार्ट्स ऑन देयर हेड। हेड, ये जो है हेड के पार्ट में क्या क्या होता है, 2 एंटीना, देन आईज एंड देन कंपोसाइट आईज एंड माउथ पार्ट। ओके, ये कौन से इसमें आता है, हेड पार्ट में आता है। जो 3 पार्ट है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है हेड, हेड में क्या क्या आता है, एंटीना, आईज एंड माउथ पार्ट। ओके, दे यूज देयर एंटीना टू डिटेक्ट ऑडर, इट मीन्स स्मेल, वाइब्रेशन एंड साउंड्स। देखिए ये हमने अगर ग्रास हॉपर देखा है और अगर अदर कोई इंसेक्ट देखा है जिसको कि एंटीना है, तो ये एंटीना का फंक्शन क्या है, सो क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। क्या डिटेक्ट करता है, देखिए अगर एंटीना पहले अभी हमें कहीं पर दिखाई नहीं देते, बट एंटीना जो है ये क्या करते हैं, जैसे अभी इंटरनेट का टावर हम कह सकते हैं, उसी तरह से डिटेक्ट करते हैं। ओके, उसी तरह से अभी ये जो है इंसेक्ट ये क्या करते हैं, इस एंटीना से क्या डिटेक्ट करते हैं, ऑर्डर, वाइब्रेशन एंड साउंड्स को, इनके अराउंड जो है उस साउंड को इन एंटीना से क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। दे हैव कंपोसाइट आईज दैट हैव 1000 ऑफ लेंसेज। देखिए इनके ये जो आईज है, हमारे आईज और इनके आईज डिफरेंट होते
ब्लैक बॉल होता है, राइट। और ये ब्लैक बॉल जो है उसी से हम क्या करते हैं, देखते हैं, बट इनके जो आईज होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें थाउजेंड ऑफ ये होते हैं, लेंसेस होते हैं, ओके। दिस हेल्प देम टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ थिंग्स अराउंड देम। देखिए इनकी आईज ऐसे होते हैं, अगर इन्होंने देखा है तो पूरी साइड से उनको दिखाई देता है, सामने साइड में क्या है, ये साउंड से भी वो क्या करते हैं, देखिए दिस हेल्प देम टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ थिंग्स अराउंड देम, ओके। एंटीना से क्या करते हैं, वो अपना जो है वाइब्रेशन एंड साउंड जो आ रहा है वो डिटेक्ट करते हैं। एंड इन आईज से क्या करते हैं, उनके आईज कंपोसाइट आईज होते हैं, इट मीन्स वो उनके आईज सिर्फ सामने नहीं दिखते हैं, तो साइड में भी, उनके साइड में भी जो भी है वो इनके कंपोसाइट आईज से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज माउथ पार्ट। हेड फर्स्ट हेड पार्ट में क्या क्या आता है, एंटीना, आईज एंड माउथ पार्ट। The mouth parts of insects can be of different types of depending on their food। देखिए इंसेक्ट अभी जैसे कि बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई को क्या है, उनके सकिंग ट्यूब्स होते हैं जो कि फ्लावर में से जो उन्हें सक करना है तो वो उनकी जो सकिंग ट्यूब है उसमें से वो उनका फूड ले लेते हैं। देन मॉस्किटो है, मॉस्किटो की हॉलो ट्यूब होती है, उससे क्या करते हैं, उनका फूड अपने माउथ में ले लेते हैं। सो जिस तरह से उनका फूड है उस तरह से उनके माउथ पार्ट का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। मेनी इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहॉपर्स एंड बीटल्स हैव चिविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, ओके। सो अगर हमने ग्रासहॉपर को अच्छी तरह से देखा है तो उनका माउथ पार्ट जो है चिविंग, इट मीन्स उनके माउथ को इस तरह से आगे से होता है, राइट। कभी हमने मॉस्किटो को ऐसे देखा है कि मॉस्किटो क्या होता है, ऐसे हॉलो ट्यूब होती है जिससे वो क्या करते हैं, अपना फूड सक करते हैं। बट ग्रासहॉपर का माउथ का किस तरह से स्ट्रक्चर है, इस तरह से होता है, जिस तरह से क्रैब का हमने देखा है, राइट। क्रैब की तरह क्या होता है, इनके माउथ का स्ट्रक्चर होता है। Some others like butterflies and moths have sucking types of माउथ पार्ट्स। तो जैसे कि बटरफ्लाई मैंने पहले बताया है, तो उसका ये जो है सकिंग ट्यूब होती है जिससे वो क्या करते हैं, अपना फूड सक करके अपने माउथ में ले लेते हैं, ओके। सो माउथ पार्ट कैसे होता है, हर एक इंसेक्ट का जिस तरह से वो फूड ईट करते हैं उस तरह से उनके माउथ का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि सकिंग ट्यूब है, हॉलो ट्यूब है। देन चिविंग, यहाँ पर ग्रासहॉपर का क्या है, चिविंग टाइप का है, स्क्रैप का जिस तरह से होता है इस तरह से उनका क्या होता है, माउथ का स्ट्रक्चर होता है। देखते हैं बिंगो के पास कुछ नॉलेज है, चैलेंज है हमारे लिए, क्वेश्चन पूछा है कुछ उसमें। हाउ डू कंपोसाइट आईज सेव इंसेक्ट्स फ्रॉम देयर एनिमीज। अगर जैसे हमने बोला है कि उसकी आईज कैसे होते हैं, कंपोसाइट आईज, इट मीन्स वो अपने एंटीना से क्या करता है, वाइब्रेशन एंड साउंड को डिटेक्ट करता है, तो अपनी आईज से क्या करता है, अपने अराउंड जो भी है वो देख सकता है। देखो क्या है यहाँ पर, उसका आंसर है, देखिए they have composite eyes that have thousand of lenses। उनके आईज में कितने लेंसेस होते हैं, 1000 ऑफ लेंसेस होते हैं। this help them to detect the motion of things around them। उनके आसपास जितनी भी गतियां है, जितने भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वो जैसे एंटीना से डिटेक्ट करते हैं उसी तरह से कैसे देखते हैं, उनके कंपोसाइट आईज से देखते हैं। एंड अगर उनको उस इंसेक्ट को ईट करने के लिए आ रहा है तो क्या करता है, उन्हें मीन्स जो एनिमी है वो अपनी कंपोसाइट आईज से देख के खुद को प्रोटेक्ट करता है, ओके। सो यहाँ पर हमारा हेड पार्ट तक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है सेकेंड चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट को अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है, ओके। बाय बाय।